وہ کون شخص تھا جس کو ایک کھلے میدان میں ایک ستون کے ساتھ باندھ کر جس کے جسم کو تیروں اور نیزوں کے ساتھ چھیدا جا رہا تھا؟ اس کا ہر حصہ جسم کا زخمی تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ ایک نیزہ جگر کے آر پار تھا اور ہر طرف نیزوں اور تیر کمانوں کے ساتھ لوگ کھڑے۔ اس مجمع میں بچے، بوڑھے اور عورتیں بھی شامل تھیں اور اس مرد مجاہد کا تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس کو کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ دین محمدی کو چھوڑ دیں تو ہم آپ کی جان بخشی کر دیں گے۔ لیکن اس مرد مجاہد نے جواب دیا، دین محمدی کو چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، لیکن جان دینا آسان ہے۔ یہ نوجوان کون تھا؟ یہ مرد مجاہد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہتے ہیں دوستو، دشمن جب محلہ چھوڑ دے یا شہر سے نکل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن مسلمانوں نے جب شہر چھوڑا، تمام جائیدادیں کفار کے حوالے کر کے مکہ سے 300 میل دور مدینہ میں جا آباد ہوئے، تو کفار پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گئے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان الگ رہ کر تیاری کریں گے، اہل عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور جب یہ خطرہ دریا بن گیا تو ہماری سرداری کا جاہ و جلال اسلام کے سیلاب حق کے سامنے خشش و خاشاک کی طرح بہہ جائے گا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو پہل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ قریش مکہ نے اپنی دماغی پریشانیوں کے ماتحت خود ہی بیل مجھے مار کی روش اختیار کر لی تھی۔ جب بدر اور احد کے میدانوں میں ان کے تیغ ازماؤں کا زم باطل بھی ختم ہو گیا تو وہ سازش کے جال بھی بچھانے لگے۔ انہوں نے ازل اور فارا کے ساتھ آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور کہلوایا، اگر آپ ہمیں چند مبلغ عنایت فرما دیں تو ہمارے تمام قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ماتحتی میں کل 10 بزرگ صحابہ کا وفدان کے ساتھ بھیج دیا۔ ایک گھاٹی میں کفار کے 200 مسلح جوان مسلمانوں کی تبلیغی وفد کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مبلغین اسلام یہاں پہنچے تو بے نیام تلواروں نے بجلی بن کر ان کا استقبال کیا۔ مسلمان اگرچہ اشاعت قرآن کے لیے گھروں سے نکلے تھے مگر تلوار سے خالی نہ تھے۔ احساس خطرہ کے ساتھ ہی 200 کے مقابلے میں 10 تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ 8 صحابی مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ 2 شیروں کو کفار نے محاصرہ کر کے گرفتار کر لیا۔ سفیان ہذلی انہیں مکہ لے گیا اور یہ دونوں صالح مسلمان نقد قیمت پر مکہ کے درندوں کے ہاتھ فروخت کر دیے گئے۔ حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید کو حارث بن عامر کے گھر ٹھہرایا گیا اور پہلا حکم یہ دیا گیا کہ انہیں روٹی دی جائے اور نہ پانی۔ حارث بن عامر نے حکم کی تعمیل کی اور کھانا بند کر دیا گیا۔ ایک دن حارث کا 9 عمر بچہ شریک کے ساتھ کھیلتا ہوا حضرت خبیب کے پاس آ گیا۔ حضرت خبیب کے پاس گیا۔ اس مرد صالح نے جو کئی روز سے بھوکا اور پیاسا تھا، حارث کے بچے کو گود میں اٹھایا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے کر زمین پر رکھ دی۔ جب ماں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت خبیب چھری اور بچہ لیے بیٹھے تھے۔ عورت چونکہ مسلمانوں کے کردار سے ناواقف تھی، یہ حال دیکھ کر لڑکھڑا گئی اور بے تابانہ چیخنے لگی۔ حضرت خبیب نے عورت کی تکلیف محسوس کی تو فرمایا، بی بی تم مطمئن رہو، میں بچے کو زنج نہیں کروں گا۔
मुसलमान जुल्म नहीं किया करते। इनके अल्फाज के साथ ही हज़रत ख़ुबैब ने गोद खोल दी। मासूम बच्चा उठा और दौड़कर माँ से लिपट गया। कुरैश ने चंद रोज़ इंतज़ार किया। जब फाका कशी के अहकाम अपने मकसद में कामयाब ना हो सके तो कत्ल की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया। खुले मैदान में एक सतून नस्ब था और ये अपनी बेबसी पर रो रहा था। इसके चारों तरफ बेशुमार आदमी हथियार संभाले खड़े थे। बाज़ तलवारें चमका रहे थे, बाज़ नेज़े तान रहे थे, बाज़ कमान में तीर जोड़कर निशाना ठीक कर रहे थे। आवाज़ आई, ख़ुबैब आ रहा है। मजमा में एक शोर मशरे बपा हो गया। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। बाज़ लोगों ने मुस्तैदी से इख्तियार संभाले और हमला करने और खून बहाने के लिए तैयार हो गए। मर्द मुजाहिद मर्द सालिया ख़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कदम ब कदम तशरीफ़ लाए और इन्हें सलीब के नीचे खड़ा कर दिया गया। एक शख्स ने इन्हें मुखातब किया और कहा, ख़ुबैब हम तुम्हारी मुसीबत से दर्दमंद हैं। अगर अब भी इस्लाम छोड़ दो तो तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। लेकिन कुर्बान जाऊं हज़रत ख़ुबैब के ईमान पर। हज़रत ख़ुबैब ने कहा ख़िताब करने वाले से और फरमाया, जब इस्लाम ही बाकी ना रहा तो जान बचाना बेकार है। इस जवाब की साबित कदमी बिजली की तरह शोर भीड़ पर गिरी। मजमा साकत हो गया और लोग दम बखुद रह गए। ख़ुबैब कोई आखिरी आरज़ू है तो बयान कर, एक शख्स ने कहा और ख़ुबैब ने जवाब दिया, कोई आरज़ू नहीं, 2 रकात नमाज अदा कर लूँगा। बहुत अच्छा, फारग हो जाओ, हजूम से आवाज़ आई। फांसी गड़ी हुई है। हज़रत ख़ुबैब इसके नीचे खड़े हैं ताकि अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करें। खलूस व न्याज का इसरार है कि ज़बां शाकर जो हमद हक़ में खुल चुकी है अब कभी बंद ना हो। दस्ते न्याज जो बारगाही कबीरिया में खुल चुके हैं अब कभी बंद ना हों। वो खुले के खुले रहें। रकूं में झुकी हुई कमर कभी सीधी ना हो। सजदा में गिरा हुआ सर कभी खाके न्याज से न उठे। हर बिन मुँह से इस कदर आंसू बहें कि इबादत गुजार का जिस्म तो खून से खाली हो जाए, मगर इसके इश्क व मोहब्बत का चमन इस अनोखी आबियारी से रश्क फरदोस बन जाए। हज़रत ख़ुबैब का दिल मोहब्बत नवाज इश्क व न्याज की लज़्ज़तों में डूब चुका था कि अकल मसलहत कैश ने इन्हें रोका और एक ऐसी आवाज़ में जैसे सिर्फ़ शहीदों की रूह ही सुन सकती है, इन्हें रूहे सलाम की तरफ ये पैगाम दिया कि अगर नमाज ज़्यादा लंबी करोगे तो काफिर ये समझेगा कि मुसलमान मौत से डर गया है। इस पैगाम हक़ के साथ ही हज़रत ख़ुबैब ने दाएं तरफ गर्दन मोड़ी और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुफ़ार नहीं बोले, मगर इनकी खींची हुई तलवारों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब आपने बाएं तरफ गर्दन मोड़ दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कफ़ार अब भी खामोश रहे, मगर नेज़ों की अनियाँ और तीरों की ज़बानें रो रो कर पकारी, ए मर्द मुजाहिद, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मर्द मुजाहिद ख़ुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सलाम फेर कर सलीब के नीचे खड़े हो गए। कफ़ार ने इन्हें फांसी के स्तून के साथ जकड़ दिया और फिर नेज़ों और तीरों को दावत दी कि वो आगे बढ़ें और इनके सदके मज़लूमियत का इम्तहान लें। एक शख्स आगे आया और इसने ख़ुबैब मज़लूम के जिस्म पाक के मुख्तलिफ हिस्सों पर नेज़े से हल्के हल्के चरके लगाए और वही खून अतर
जो चंद ही लम्हे पेशेतर हालत नमाज में लश्कोर स्पास के आंसू बनकर आंखों से बहा था, अब जख्मों की आंख से शहादत के मुश्को बू कतरे बनकर टपकने लगे। पैकरे सब्र खुबैब के दर्दनाक मुसाइब का तसव्वुर कीजिए दोस्तों। अब सतून के साथ जकड़े हुए हैं। कभी एक तीर आता है और दिल के पार हो जाता है, कभी नेज़ा लगता है और सीने को चीर देता है। इनकी आंखें आते हुए तीरों को देख रही हैं, इनके अज़ू अज़ू से खून बह रहा है, मगर वो तकलीफ़ की इस क़यामत में भी इनका दिल इस्लाम से नहीं टलता। एक और शख्स आगे आया और इसने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिगर पर नेज़े की अन्नी रख दी, फिर इस कदर दबाया कि वो कमर के पार होगी। ये जो कुछ हुआ हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें देख रही थीं। हमलावर ने कहा, अब तो तुम भी पसंद करोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ लग जाएं और तुम इस मुसीबत से छूट जाओ। पैकरे सब्र मर्द मुजाहिद ने जवाब दिया, जिगर के चिरके के दिल की हौसला मंदी से बर्दाश्त कर लिया, मगर ये ज़बान का गौ बर्दाश्त न हुआ। अगरचे ज़बान का खून नुचड़ चुका था, मगर जोश ईमान ने इस खुशक हड्डी में भी ताब गोयाई पैदा कर दी और आपने जवाब दिया, ऐ ज़ालिम, अल्लाह जानता है कि मुझे जान देना पसंद है, मगर ये पसंद नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में एक कांटा भी चुभे। नमाज के बाद हज़रत खुबैब पर जो हालतें गुजरीं, आप बेसाख्ता शेरों में इन्हें अदा फरमाते हैं। इन अशार का तर्जमा कुछ यूँ है, लोग अम्बुआ तर अम्बुआ मेरे गिर्द खड़े हैं, कबीले जमातें और जत्थे यहाँ सब की हाज़िरी लाजम हो गई है। ये तमाम इज्तमा अज़हारे अदावत के लिए है। ये सब लोग मेरे ख़िलाफ़ अपने जोश इंतकाम की नुमाइश कर रहे हैं और मुझे यहाँ मौत की खूंटी से बांध दिया गया है। इन लोगों ने यहाँ अपनी औरतें भी बुला रखी हैं और बच्चे भी, और एक मजबूत अदा सतून के पास खड़ा कर दिया। ये लोग कहते हैं अगर मैं सलाम से इनकार कर दूं तो ये मुझे आज़ाद कर देंगे, मगर मेरे लिए तर्के इस्लाम इनकार कर दूं तो ये मुझे आज़ाद कर देंगे, मगर मेरे लिए तर्के इस्लाम कबूल नहीं। मौत बहुत आसान है, अगरचे मेरी आंखों से आंसू जारी हैं, मगर मेरा दिल बिल्कुल पुरसकून है। मैं दुश्मन के सामने गर्दन नहीं झुकाऊंगा, मैं फरियाद नहीं करूंगा, मैं खौफज़दा नहीं हूँगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि अब अल्लाह की तरफ जा रहा हूँ। मैं मौत से नहीं डर सकता, इसलिए कि मौत बहरहाल आने वाली है। मुझे सिर्फ़ एक ही डर है और वो दोज़ख की आग का डर है। मालिक अर्श अज़ीम ने मुझसे खिदमत ली है और मुझे सब्र व सबात का हुक्म दिया है। अब कुफार ने ज़द्दोकोब करके मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और मेरी तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं अपनी आजिज़ी, बेवतनी और बेबसी की अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ। नहीं मालूम मेरी मौत के बाद इनके क्या इरादे हैं। कुछ भी हो, जब मैं राह खुदा में जान दे रहा हूँ तो ये जो कुछ भी करेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो मेरे गोशत के एक एक टुकड़े को बरकत अता फरमाएगा। ऐ अल्लाह, जो कुछ आज मेरे साथ हो रहा है अपने रसूल को इत्तला पहुंचा दे। हज़रत सईद बिन आमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उम्र फ़ारूक के हमल थे। बाज़ औक़ात आपको बैठे बैठे दौरा पड़ता था और आप वहीं बेहोश होकर गिर पड़ते थे। एक दिन हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा,
آپ کو کیا مرض ہے جو آپ بالکل تندرست ہوں اور مجھے کوئی مرض نہیں۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو پھانسی دی گئی تو میں اس مجمع میں موجود تھا۔ جب وہ ہوش رہا، واقعات یاد آ جاتے ہیں تو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا اور میں کانپ کر بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ واقعات سن کر اور مجھے سنا کر ہم سب کے دل بھی ایک بڑی بار لرز اٹھے ہوں گے اور ایمان افروز واقعات سن کر ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔